हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से नॉन फाइनाइट्स के बारे में आपको बताते आ रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नॉन फाइनाइट्स पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट्स। आफ्टर इन्फिनेटिव, आफ्टर बेयर इन्फिनेटिव, थर्ड स्टेप इज टू लर्न पार्टिसिपल। तीसरा स्टेप पे हम लोग पार्टिसिपल सीखेंगे आज। एंड पार्टिसिपल हैज़ मेनली थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रिटन हेयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल. So all these participles are very important to learn because these participles have dual function in English language. इसका दो फंक्शन होता है। पार्टिसिपल को हम लोग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब वर्बल एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव वर्ब से बनता है, वर्बल एडजेक्टिव। सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. सो द वर्ब व्हेन वी यूज इट एज एन एडजेक्टिव, it is a participle. In this column a number of words are written here. बहुत सारे words लिखे हुए हैं. These are the examples of past participle जो कि V3 होता है. V3 को ही past participle कहा जाता है. Written, this is the third form of write. Spoken, this is the third form of speak. Broken, this is the third form of break. Similarly, stolen, this is the third form of steal. Hidden, this is the third form of hide. Perfect participle, it is preceded by having. आप देख रहे हैं हर जगह having लगा हुआ है. Having written, having spoken, having broken, having stolen, having hidden, having beaten. Similarly, having fallen, having known, having frozen and having taught. So these are the examples of past participle. Third is present participle. V4 is present participle, जिसको हम लोग verb के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग राइटिंग को, स्पीकिंग को, ब्रेकिंग को, इसी तरह से बहुत सारे आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इसको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, कैसे ये क्वालिफाइंग वर्ड बनता है और कैसे इसको हम लोग एक्शन वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर. फर्स्ट, लुक एट द definition of participle. So participle, when verbs are used both as verbs and adjective, are called participle. Example, she was playing cards. In this example, action is shown. An action is being performed by she. I have no playing cards. In this example, playing cards. Here playing is qualifying cards. Which cards? Playing cards. इसलिए एडजेक्टिव हो गया और इसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे. दिस इज व्हाट? वर्बल एडजेक्टिव. तो पार्टिसिपल को हम लोग वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. द टीचर हैड ब्रोकन द स्टिक. Here in this example, action is being shown, but the broken stick was found in the classroom. Here it is what? Adjective. This broken is what? Adjective. It is a describing word. ये describing word है and this word is describing a stick. Which stick? Broken stick. The thief had stolen her belongings. Here stolen is what? This is the verb and this is example of past perfect tense. लेकिन अगले एग्जाम्पल में
The stolen belongings could not be recovered. Here stolen is describing belongings. यहाँ पे stolen belongings को describe कर रहा है, इसलिए stolen को हम verb नहीं बोलेंगे, stolen को हम बोलेंगे adjective. Adjective. So these are the examples of participle, present participle and past participle. Stolen is past participle. Okay. Broken is past participle, but playing is what? Present participle. Similarly, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. I was waiting for the bus. इसमें जो waiting आया है, waiting क्या है? ये verb है, यहाँ पे action perform हो रहा है. Action, it is not adjective. I was waiting for the bus, and the passengers could be seen in the waiting hall. Which hall? Waiting hall. Here hall is being described by waiting. So adjective को हम लोग describing word भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे waiting जो हुआ वो adjective हुआ, न कि verb हुआ. Having stolen my pen, he ran away. Having stolen my pen, he ran away. And having seen the tiger, Swami climbed the tree. यहाँ पे having seen और having stolen दोनों जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है. यानी कि V3 में जब भी हैविंग का यूज़ हो जाएगा, V3 के पहले हैविंग का यूज़ हो जाएगा, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हो जाएगा. चीफ वर्ब्स यूज्ड एज वर्बल एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल. कुछ वर्ब्स हम देखते हैं जिसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे बीटेन और बीटिंग. बीटेन में बीटेन टीम, इसका मतलब हुआ हारा हुआ टीम. एंड बीटिंग ड्रम. ये दोनों एग्जाम्पल में बीटिंग क्या है, बीटिंग और बीटेन क्या है, एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है. दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नॉट अ वर्ब. उसी तरह से ब्रोकन और ब्रेकिंग. ओके, ब्रोकन स्टिक, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा, ब्रोकन स्टिक. कैसा स्टिक? तो टूटी हुई छड़ी. यहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव है. उसी तरह से बाउट, बाइंग, पेड, पेइंग, काउट, कैचिंग, ड्राइव एंड ड्राइविंग. जैसे ड्राइविंग सीट और ड्राइविंग लाइसेंस. तो यहाँ पे ड्राइविंग सीट और ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग इज एन एडजेक्टिव, इट इज नॉट वर्ब. फॉलन ट्री एंड फॉलिंग ट्री. फाउंड बिलोंगिंग्स, फाउंड आर्टिकल्स एंड फाइंडिंग प्रॉब्लम. Forbidden and forbidding. So all these are the examples of present participle and past participle. This is the example of past participle. And this is the example of present participle. So dear students, I hope so that you all have understood participle, and in next video some other rules of participles I will teach. Till then, goodbye, take care, have a nice day. Thank you.